मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। राज्य चुनाव आयोग ने आसनसोल नगर निगम की मतगणना की तिथि घोषित कर दी है। 14 फरवरी को तय होगा कि इन 4 निकायों का सरताज कौन होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि 22 जनवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी थी, लेकिन मतगणना की तारीख की घोषणा नहीं की गई थी। अब आयोग ने मतगणना की तारीख की घोषणा कर दी है। 14 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि आसनसोल नगर निगम के 106 वार्ड पर 12 फरवरी को मतदान होगा। यहां कुल 431 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 10,020 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार भी चल रहा है। अब मतदान के बाद सभी को 14 फरवरी का इंतजार रहेगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। और टोल फ्री नंबर आर 180012333993। बीजेपी उम्मीदवार का साक्षात्कार। पीयूष कांति गोस्वामी। श्री गोस्वामी पिछले 35 वर्ष से आसनसोल कोर्ट के कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारी मार्जिन के साथ अपनी सीट जीतने का दावा किया है। पीयूष कांति गोस्वामी অ্যাডভোকেট আসানসোল কোর্ট। আমি 48 নম্বর ওয়ার্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী একজন। এখানে যেরকম অবস্থা সেই অবস্থায় আপনাদের কি মনে হচ্ছে? এখানে কি অবস্থার কথা কি বলতে চাইছেন? অবস্থা মানে আগে থেকে টিএমসি রুলিং পার্টি ক্যান্ডিডেট রুলিং পার্টি সবসময় একটা অ্যাডভান্টেজ পায়। রুলিং পার্টি সে অ্যাডভান্টেজ নিচ্ছে এবং তা সত্ত্বেও আমরা এখানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি এবং জেতার ব্যাপারে আমি আশাবাদী। রুলিং পার্টি যে কাউন্সিলর তার তো খুব অভিমান হয়ে গেছে, এখন কাউকে শোনে না। একটা অভিমান হয়েছে সেটা আমি বলতে পারবো, সেটা তিনি বলতে পারবেন। আমরা এখন রাজনৈতিকভাবে লড়াই করছি, ভোটে দাঁড়িয়েছি, লড়াই করছি, লড়াই আমরা করবো এবং জিতবার আশা করি। লোকে কীরকম আপনাকে রেসপন্স করছে? লোকে খুব ভালো রেসপন্স করছে, আমাকে খুবই ভালো রেসপন্স করছে এবং সমস্ত ক্লাসের লোকই রেসপন্স করছে। বোর্ড গঠন হলে আপনি এই ওয়ার্ডের জন্য কি কি করবেন? আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি এই ওয়ার্ডের জন্য আমি বহুত গরিব লোকের ঘর দেখেছি তাদের মাথার উপর ছাদ নাই। আমার প্রথম কাজ হবে সেই তারা যেন একটা করে ছাদ পায় ঘরে, আমার জল থেকে আড়াল করবার জন্যে। আমার খুবই কষ্ট হয় যে এতদিন ধরে বাম শাসন গেছে, তৃণমূলের শাসন গেছে, এরা অনেক উন্নতির দাবি করে, কিন্তু বিশ্বাস করুন অনেক নিম্নবিত্ত পরিবারের কোনো ঘরের ছাদ নাই, ঘর নাই। আমার প্রথম কাজ তাদের ঘর তৈরি করে দেওয়া। আমার পরবর্তী কাজ ওই সব জায়গায় যে সমস্ত নোংরা আবর্জনা স্তূপ হয়ে আছে সেসবগুলো পরিষ্কার করা। কারণ সত্যি যেটা গ্রিন সিটি বলতে এরা প্রচার করে সেটা গ্রিনই কোথাও নেই, ক্লিনও কোথাও নেই। আমার সেই ক্লিন এবং গ্রিন করে উদ্দেশ্য। আমার তৃতীয় কথা হচ্ছে হটন রোডের উপরে যে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। আমরা এই সভ্য সমাজে বাস করছি, সভ্য দেশ, এত সাইন্টিফিক এত পদ্ধতি আছে, সেই সমস্ত পদ্ধতিতে ড্রেনের জল নিষ্কাশন করে অন্তত হটন রোডে যেন কোমর ভর্তি জলে মানুষকে না চলতে হয়। এই বস্তাকাটা মানুষের ঘর বাড়িতে যেন জল না ঢুকে যায়, এগুলো আমার দেখার কাজ। ইয়াংস্টারদের জন্য এমপ্লয়মেন্টের জন্য আপনার কি? দেখুন, একটা কাউন্সিলর হিসেবে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করা খুবই কঠিন। যদি ক্রিয়েট করতে পারি আমার মতো সুখী আর কেউ হবে না, এত আনন্দিত কেউ হবে না আমি যদি কিছু এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি, এবং আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব।
আপনার কি মনে হচ্ছে ওরা কি বুথ আর যে কাউন্সিলর তিনবার করে জিতেছেন, তো সেই হিসাবে আপনি কি মনে করছেন? দেখুন, আমি ওকালতি করি, এখানে আমি হাঁটতে শিখি নাই। আমার প্রতিপক্ষ কে এটা আমরা দেখি না, কারণ ওকালতি করতে গিয়ে আমি অনেক বড় বড় লয়ারদের সম্মুখীন হয়েছি। বিজয়বাবু, বিকাশবাবু, ফণিবাবু, তপনদা, অনেক বড় বড় লয়ার, কিন্তু কখনো ভাবি নাই আমি যে দেশে আমি লড়তে পারবো না। সব প্রতিপক্ষ আমার যতই শক্তিশালী হোক না কেন, দুর্বল আমি নই। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। वार्ड संख्या 82 में आरएसपी उम्मीदवार नूरी परवीन का साक्षात्कार। यह इंटरव्यू मुस्कान परवीन द्वारा दिया गया। नाज़रीन, मैं मुस्कान परवीन न्यूज मोमेंट से आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम लोग एक खुसूसी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मोहतरमा एडवोकेट नूरी परवीन का। चलिए मिलते हैं नूरी परवीन से। अस्सलाम वालेकुम। मैं नूरी परवीन, एडवोकेट ऑफ आसनसोल कोर्ट, वार्ड नंबर 82 से इस बार काउंसिलर के लिए खड़ी हुई हूँ, आरएसपी पार्टी से। सवाल आपसे है कि बंगाल में आरएसपी का वजूद खत्म हो चुका है, आपको क्या लगता है आपके जीतने से यहाँ उसकी वापसी होगी? बिल्कुल, और पहली बात हु सेड कि बंगाल में आरएसपी का वजूद खत्म हो चुका है। अगर बंगाल में आरएसपी का वजूद खत्म हो चुका होता तो फिर हम क्यों खड़े होते? बंगाल में आरएसपी का वजूद है, और आज भी हमारी पार्टी के बहुत सारे एमएलए सब कॉन्फिडेंस है कि हम आरएसपी से इसलिए ही खड़े हुए कि हम जीतेंगे यहाँ से। यहाँ से जीती है तो यहाँ के वार्ड के लिए क्या करना चाहती है डेवलपमेंट के नाम पर? हाँ, इंशाल्लाह अगर हम यहाँ से जीते, वार्ड नंबर 82 से जीते, क्या आई थिंक आई विल विन। और जब हम जीतेंगे तो सबसे बड़ी पहले अब काम रहेगा मेरा कि जहाँ तक मेरा है हम पूरा वार्ड घूमें। ठीक है, घूमने के बाद देखे, मेरी डायरी में पूरा नोट भी है पब्लिक का समस्या। आज भी हमको बहुत अफसोस लगता है कि इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी यार हमारा जो मोहल्ला है वार्ड नंबर 82 इतना पीछे कि क्या बताएं। हिंदुस्तान डिजिटल हो रहा है लेकिन हमारा मोहल्ला डिजिटल नहीं हो रहा है। और बीइंग एन एडवोकेट देख के मेरे को दुख लगता है। इसलिए हम खड़े हुए हैं कि हम अपना मोहल्ला को डिजिटल करेंगे। मोदी हिंदुस्तान डिजिटल करेगा और नूरी परवीन मोहल्ला डिजिटल करेगी। बहुत खूब। और एक बात जो सबसे जरूरी है, ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मेरे को लगता है कि आज भी लड़कियों को वार्ड नंबर 82 में डिस्क्रिमिनेट ही किया जाता है, आज के डेट में भी। ऐसी बात नहीं है कि हमारे मोहल्ले में टैलेंटेड लड़कियां नहीं है, बहुत है। और हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले से हर साल IPS, IAS, जजेस वार्ड नंबर 82 से निकले। इसलिए हम खड़े हुए हैं कि हम सक्सेस है। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले के हर घर से लड़कियां निकले, बाहर आए और इसी तरह सक्सेस करें ताकि वार्ड नंबर 82 पूरा हिंदुस्तान में चले। इसलिए हम आए और हम जीतते हैं तो ये मेरा अपना ख्वाहिश है कि जब हम जीतेंगे तो ज़्यादातर खास करके यूथ के लिए काम करेंगे। मेरा ड्रीम है कि हम यूथ के लिए काम करेंगे, वट एवर मे बी, बॉयज एंड गर्ल्स। और हम अपने मोहल्ले के लड़कों को भी देखते हैं, भेगाबंद बॉयज इधर उधर घूमते रहते हैं, गुटखा, पान, सिगरेट, ये सब हमको पसंद नहीं है। नहीं, जो हकीकत है, किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी बट इट इज ट्रू। फैक्ट हम बोलेंगे ही
क्योंकि हम इसी मोहल्ले की लड़की हैं। तो यूथ लोग को जो देखते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। सब मेरे भाई जैसे हैं, तो हम उन लोगों के लिए भी करेंगे। बेरोजगार सब, तभी तो ये लोग अपना टाइम इधर से उधर वेस्ट करते हैं। तो यूथ लोग के लिए रोजगार करेंगे। लड़कियों लोग के लिए हम खास करके चाहेंगे कि रोजगार हम लाए बंगाल में, और लाए क्या, हम लाएंगे भी, ये डेफिनेटली। ये मेरा खुद से वादा है। पब्लिक तो छोड़ दीजिए कि जनता को हम क्या वादा करेंगे, ये मेरा खुद से वादा है कि अगर हम यहाँ सक्सेस होते हैं, और होंगे ही डेफिनेटली, तो हम यहाँ लड़की लोग के लिए बहुत सारा नौकरी लाएंगे, बहुत नौकरी। ये मेरा इच्छा है, क्योंकि लड़की लोग को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, जैसे आज हम हैं। और यहाँ लड़कियों के लिए लाइब्रेरी खोलना है, जो बहुत ज़रूरी है। और अगर मौका मिला, कोशिश तो हम करेंगे, अगर मौका मिला तो मेरा सपना है कि हम वार्ड नंबर 82 में एक और हाई स्कूल खोलें, क्योंकि यहाँ स्कूल की बहुत कमी है, जहाँ तक मेरा नज़र जाता है। एक हमारा सिर्फ रहमत नगर स्कूल है, जिसमें बच्चे इतने हैं कि मतलब और बच्चों का होता नहीं वैकेंसी। इसलिए एक हाई स्कूल और लाइब्रेरी, ये मेरा अपना चेरिश ड्रीम है। सब कह रहे हैं बंगाल में खेला हो गया, आपका क्या राय है इसमें? देखिए, खेला तो हो ही रहा है, 5 साल से हो क्या रहा है, खेला ही हो रहा है, ठीक है। और हम यहाँ खेला खेलने के लिए नहीं आए हैं। इस बार खेला नहीं होगा, इस बार काम होगा, ठीक है। इस बार वार्ड नंबर 82 में काम होगा। जहाँ खेला है, जिसको वो खेले, आई डोंट केयर, बट हमको काम करना है। और हम वार्ड नंबर 82 में काम करेंगे। और यहाँ की पब्लिक भी बोल चुकी है कि इस बार खेला नहीं होगा, इस बार परिवर्तन होगा, ठीक है। पब्लिक खेलते खेलते तंग आ चुकी है, इसलिए पब्लिक परिवर्तन चाहती है। अत्यधिक शीत लहर चेतावनी, समय सीमा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। गुरुवार 26 जनवरी से सोमवार 31 जनवरी तक कड़ाके की ठंड में पूरा राज्य कांप रहा है। राज्य में सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। एक जिले में पारा के न्यूनतम तापमान पर नजर डाले दार्जिलिंग 0-3 डिग्री सेंटीग्रेड, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर 9 डिग्री सेल्सियस, मालदा -9 डिग्री सेल्सियस, मुर्शिदाबाद -9 डिग्री सेल्सियस, नादिया 5 डिग्री सेल्सियस, उत्तर 24 परगना -9 डिग्री सेल्सियस, दक्षिण 24 परगना में 9 से 11 डिग्री सेल्सियस है, और कोलकाता 9 से 11 डिग्री सेल्सियस, हावड़ा 10 डिग्री सेल्सियस, हुगली -9 डिग्री सेल्सियस, पूर्व मिदनापुर -10 डिग्री सेल्सियस, पश्चिम मिदनापुर -5 डिग्री सेल्सियस, और पश्चिम वर्धमान 5 डिग्री सेल्सियस, वीरभूम -5 डिग्री सेल्सियस। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। बाराबनी से सीनियर रिपोर्टर मनोज शर्मा के अनुसार बाराबनी थाने से 2 बार पुरुषों के हाथ से कंबल बांटे गए और उसी समय गांव के प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मैक्स वितरण किया गया और फिर खिचड़ी खिलाई गई। बाराबनी थाना के प्रभारी अधिकारी अरिदम मंडल, उप निरीक्षक देवाशीष चक्रवर्ती, एएसआई प्रदीप मंडल, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि आशीष मंडल उपस्थित थे। আপনাদের জন্য আপনাদের কাছে যদি আপনাদের কোনো রকম কাজে আমরা লাগি, আপনারা কি হিন্দি ভালো বোঝেন না বাংলা? বাংলা। তো আপনাদের যদি কোনো কাজে লাগি সেই জন্য যাতে আপনাদের কাছাকাছি আসি, আপনাদের আপদে বিপদে খারাপ সময়ে আমরা যেন সাথে থাকি, সেই জন্য কোনো অসুবিধা থাকলে সেগুলো বড়বাবুর কাছে যাওয়া বলা, এই সমস্ত কারণের জন্য আমাদের আসা। আর তার সাথেই পরিচয়ের মধ্যে বড়বাবু যেটা আপনাদের জন্য করেছে, প্রচন্ড ঠান্ডা পড়েছে। आसनसोल, राज्य सरकार जब्त की गई करोड़ों रुपए की देशी शराब की नीलामी करने जा रही है। आसनसोल, राज्य सरकार जब्त की गई करोड़ों रुपए के देसी शराब की नीलामी करने जा रही है। नीलामी 50,35,000 रुपए से शुरू होगी। करोड़ों रुपए की देशी शराब की ऑनलाइन नीलामी होगी।
आबकारी विभाग के मुताबिक अवैध निवेश कंपनी पिनकॉन से बोतल बंद शराब जब्त करने के लिए 5वें दौर की नीलामी की गई। नीलामी प्रक्रिया में शामिल आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिनकॉन कंपनी के अवैध निवेश की जांच के दौरान भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की गई है। कुल मिलाकर करीब 17 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। 2018 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि जब्त शराब की गई शराब को बेचकर जमाकर्ताओं के लिए पैसे वसूलने के लिए गठित एक समिति को दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी 4 चरणों में नीलामी हो चुकी है। इस बार 5वें चरण में पिनक की आसनसोल फैक्ट्री में देसी शराब जब्त की नीलामी की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया को न्यायालय के आदेशानुसार पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था की गई है। बिक्री से होने वाला पैसा कोर्ट में तय कमेटी के पास जमा जाएगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। 14 साल से रानीगंज की सड़कों पर भटक रहे 55 वर्षीय गुड्डू सिंह को आखिरकार उसके परिजनों ने ढूंढ लिया। क्षेत्र के निवासियों का दावा है कि रानीगंज के एक पुलिसकर्मी राजेंद्र कुमार के प्रयासों से गुड्डू सिंह को ढूंढना संभव हुआ है। घटना के संदर्भ में ज्ञात होता है कि लंबे समय तक रानीगंज के गलियों में गुड्डू को भटकते हुए देखा जा सकता था। हालांकि कई मौकों पर उससे कई बार पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को उसके घर की पहचान और उसका सही नाम और सही पता नहीं पता लग पाया, क्योंकि उसने उचित जवाब नहीं दिया था, इसलिए वापस नहीं जा सके। उसके बाद से गुड्डू ने सड़क के किनारे रानीगंज के जगन्नाथ पुल के नीचे अपना अस्थायी पता बना लिया। इस बार पुलिस अधिकारी तमस कुमार पाती ने राजन कुमार को उत्तर प्रदेश के रहने वाले शख्स से बात करने को कहा। उत्तर प्रदेश में गुड्डू के गांव आसपास रहने वाले एक पुलिसकर्मी राजन कुमार ने शुक्रवार की रात गुड्डू सिंह से उनकी भाषा में बात करना शुरू किया। जब रानीपुर थाने में से उसका पता लगाया तो उन्होंने रानीपुर गांव के पिरुआ पंचायत के मुखिया गुड्डू यादव को युवक की जानकारी के साथ उसकी तलाश की। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। 3 टन कोयला और 18 साइकिल के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। कुल्टी, 3 टन कोयला और 18 साइकिल के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। CISF ने तलाशी ली और अवैध कोयला जब्त किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त द्वारा बार बार तलाशी और छापेमारी के बावजूद कोयला चोर अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों पर कोयले की अवैध जब्ती हुई है।
हालांकि सार्वजनिक सड़कों पर साइकिल पर भी पिछले कुछ महीने से कुल्टी थाने की चौरंगी चौकी से जब्त किए गए कोयले के से लदे ट्रकों या लॉरियों की गणना से स्पष्ट है। और सूत्रों ने बताया है कि अब कोयले की चोरी सबसे ज़्यादा बाराबनी और सलानपुर में होती है। उसके बाद जामुरिया, रानीगंज, कुल्टी और आसनसोल के कुछ इलाकों में चोरी हो रही है। सलानपुर में बजिमहारी, संग्रामगढ़ और डाबर कोयलेरी से सटी खदानों में चोर कोयला खोद रहे हैं। बजिमहारी और रेलवे साइडिंग से भी कोयला चोरी हो रहा है। बाराबनी के रसोनपुर इलाके में चोर कोयला काट रहे हैं। कोयला साइकिल, बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल से झारखंड सीमा के पास अवैध डिपो में ले जाया जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बाराबनी के जामग्राम, गौरांडी, मदनपुर और सालिती इलाकों में अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है, जिससे समय समय पर भूस्खलन भी हो रहा है और इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने की है। क्षेत्रवासियों का दावा है कि आसनसोल के मिठानी, बेजडीही, दामगढ़िया, बरिया, काली पहाड़ी, नुनियाबुरी, गिरमिट, लालडंगा क्षेत्र में भी कोयले की चोरी हो रही है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। आसनसोल रेलवे स्टेशन में शनिवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर आसनसोल रेलवे स्टेशन में शनिवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर कार्यालय में स्टेशन के जितने भी फूड स्टॉल, हेल्डर और स्टेशन के बाहरी परिसर में जितने भी रेलवे के स्टाफ हैं, सभी कर्मचारी को लेकर कंप्यूटर के पावर पॉइंट के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर AK पारिया ने बताया कि कोविड-19 की स्थिति एकदम धीमी गति हो गई है, जिसके कारण यात्री लोगों का ट्रेन में यात्रा परिचय का सेवा काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण उन्होंने बताया कि जितने भी स्टॉल के हेल्डर लोगों को बताया गया कि आप लोग मास्क, ग्लव का प्रयोग करें, यात्रियों से बातचीत अच्छी तरीके से करें और अपने दुकानों को आसपास के इलाके की साफ सफाई रखें। स्टॉल में डस्टबिन होना ज़रूरी है और रसोई घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। नॉनवेज और वेज के लिए अलग अलग फ्रिज होना चाहिए। 40 ग्राम नशीली दवाओं के साथ एक महिला ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी। कार्यवाहक मालिक अमित हल्दर ने एस्को रोड के घर से 40 ग्राम नशीली दवाओं के साथ एक प्रमुख महिला ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी का नेतृत्व किया। पुलिस के मुताबिक अनुमानित कीमत लाखों रुपए से अधिक है। महिला को आज गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट भेज दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस जांच के लिए उसे हिरासत में लेगी। आसनसोल रेल मंडल के स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया के यात्री निवास की आसनसोल 28 जनवरी 2022 नन फेयर राजस्व की उगाही के उद्देश्य से पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल द्वारा आसनसोल स्टेशन के यात्री निवास को निनफ्रिस नीति के तहत मैमर्स, रघुनाथपुर, किसले, पुरुलिया के साथ 1 साल का नवीनीकृत करार किया गया। इस करार से रेलवे के राजकोष में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त अर्जन करना होगा। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक, आसनसोल ने आज अर्थात 28 जनवरी 2022 को एक सादे समारोह में आसनसोल स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया के उत्तरी दिशा में अवस्थित यात्री निवास के अलॉटमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। 2 मंजिली उक्त यात्री निवास में अटैच्ड बाथरूम वाले 12 कमरे के साथ फूड कोर्ट और रसोई घर इत्यादि उपलब्ध हैं। निचले तल्ले में 7 कमरे, 1 केयर टेकर रूम, रिसेप्शन और 50 वर्ग फीट का पोर्टिको है उपलब्ध है और पहले तल्ले में 4 कमरे, 1 रसोई घर और रिसेप्शन युक्त 1 केयर टेकर रूम। ट्रेन से उतरने वाले, विशेषकर रात के समय में आसनसोल स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए 2 मंजिली इमारत काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी।
यात्री निवास का किराया वातानुकूल डबल बेड 1,000 रुपये प्रति रूम प्रतिदिन, गैर वातानुकूलित डबल बेड 600 रुपये प्रति रूम प्रतिदिन, डॉर्मेट्री 250 रुपये प्रति रूम प्रति बेड प्रतिदिन। उक्त दर सूची यात्री निवास के रिसेप्शन पर प्रदर्शित है। इस अवसर पर श्री M.K. मीणा अपर मंडल रेल प्रबंधक, श्री B.K. त्रिपाठी अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वितीय, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के साथ आसनसोल मंडल के अन्य शाखा अधिकारीगण भी उपस्थित थे। डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल द्वारा शनिवार को पिछड़ों की सहायता की ओर से एक और कदम बढ़ाते हुए डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल द्वारा शनिवार को पिछड़ों को सहायता की ओर से एक कदम उठाते हुए शीनाकुड़ी अतिथि गृह में 32 बच्चियों को सिलाई मशीन आवंटित किया गया। सहायता का यह कार्यक्रम महिला मंडल की अध्यक्षता पूनम मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। जानकारी देते हुए महिला मंडल की अध्यक्ष पूनम मिश्रा ने कहा कि कोविड के समय सभी के लिए बहुत मुश्किल हुआ। लगभग 200 बच्चियों को हम लोग सिलाई मशीन दे रहे हैं। ये सभी सिलाई को प्रशिक्षण प्राप्त है। इसके पहले हमने 64 बच्चियों को सिलाई मशीनें दी हैं। यह दूसरी बार हम लोग 32 बच्चियों को मशीन दे रहे हैं। आशा करते हैं कि ये अपने पैर पर खड़ी होंगी और जो हमारा उद्देश्य है कि स्वावलंबी बने, उस उद्देश्य में हम कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। हमारी कोशिश इस दिशा में बनी रहेगी। कार्यक्रम में बच्चियों को सब पहले सिलाई सिखाई गई। उसके बाद संस्था की अध्यक्षता पूनम मिश्रा के नेतृत्व में उन्हें सिलाई मशीन और प्रमाण पत्र दिया गया। सिलाई मशीन सीखने से बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में सौदपुर एरिया, सोनपुर बाजारी तथा मुगमा एरिया के गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। इनमें उपाध्यक्ष शोभा रेड्डी, मीता डे, मुगमा एरिया की AGM रश्मि रमा, सोनपुर बाजरिया के सुभाश्री महापात्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। डीसलगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल की तरफ से आज यहाँ चीनाकुड़ी में बच्चों को सिलाई मशीन डोनेट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, कोविड के टाइम में जो है सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है और हमारी करीब 200 बच्चियाँ इस बार प्रशिक्षण प्राप्त की हैं और 200 बच्चियों को लगभग हम लोग मशीन दे रहे हैं। ये दूसरी बार हम लोग दे रहे हैं। इसके पहले 27 को भी हम लोगों ने दिया था 54 बच्चियों को और आज भी दिए हैं और आशा करते हैं कि ये लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी होंगी और हम लोग का जो उद्देश्य है कि सब स्वावलंबी बने, तो वो शायद उद्देश्य में कहीं ना कहीं हम सफल हो पाएंगे। तो बस आज मैम कितने लोगों के यहाँ मशीन डिस्ट्रीब्यूट आज किया है? 32 लड़कियों को हम लोगों ने दिया है। 32 लड़कियों को हम लोगों ने आज मशीन के साथ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा मैम, आपका नाम? पूनम मिश्रा। और अब बारी गुरुवार 26 जनवरी से सोमवार 31 जनवरी वैल्यूबल कड़ाके की ठंड में पूरा राज्य कांप रहा है। राज्य में सभी जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। सबसे मूल्यवान अंचल संपारा के न्यूनतम तापमान पर नजर डालें है जिसे आप अन्य लोगों के दिल में रखते हैं। -3 डिग्री सेल्सियस यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले please like, share and subscribe our YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.